हमारे मीडिया फ्रेंड्स ऑफ द मीडिया आपको अच्छे से फोटोज दे देंगे. सोलो लेट हिम बी हैप्पी. आ जाओ. Dignitaries, please take our seats. Let's give it up. Yes. For we have our co-producers Khalid Saab and then Manish ji. Manish ji तो already smile कर रहे हैं कि मेरा भी चांस आने वाला है. हाँ मनीष जी आपका भी चांस आने वाला है. भाई यूपी के जो आपके हैं ना फैमिली है, मुझे क्या पता आप यूपी से हैं? आप कहाँ से हैं? यही से. वाह. आपके वाइफ यहाँ पर हैं? मैम इजाजत है इनको एक फोटो लेने? आप दे दो. आ जाइए मनीष जी, आप भी आ जाएं खालिद साहब के साथ एक फोटोग्राफ के लिए. राकेश जी प्लीज आप भी सेंटर में आ जाए. आप आपको चांस दे रहे हैं सर क्वींस के सेंटर में. यहाँ ये हमारे लिए बहुत मतलब आज तो सोएंगे नहीं. मनीष जी ना, मनीष जी कौन? गुड वन. Zakir sir, please Zakir sir. Sir, how can the picture be complete? Rakesh ji आप भी आ जाएं सेंटर में. No problem. We love that. And one we'll have with Zakir sir also alone in the center. One picture before we go ahead, and then it's going to be just conversations. Thank you for your smiles. बहुत shukriya. Thank you. Khalid sir, please take your seat. Khalid sir, I want you to sit in between the queens. One picture with Zakir Hussain and our queens. Please, Zakir sir. Sir, आपके लिए नहीं हमारे लिए ये pictures बहुत अहमियत रखते हैं. Please. Thank you. मनीष जी आप अपनी जगह ले सकते हैं. Thank you. शुक्रिया. With Zakir sir, please. Thank you. इंशा, तालिब और इंशा आ जाएं फोटोग्राफ के लिए. हाथ लगाइए. रिकॉर्डिंग से समय निकाल के आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे प्रोड्यूसर हमारे डायरेक्टर साहब हैं राकेश जी, अनीश जी के साथ उन्होंने बहुत सारा काम किया है. और जाकिर सर इसमें क्या किरदार करेंगे? जहाँ होते हैं अच्छा होता है. और यही साइबरमैन मनीष जी हैं जो सामने आपके खड़े हैं. आपका कलर मैच कर रहे हैं. बहुत अच्छा बोल रहे थे. आई वाज वेरी मिशन. बहुत अच्छा. थैंक यू. बहुत शुक्रिया. थोड़ा एसी बढ़ा दीजिए. Miss India Global, Miss Mansi. So without any further ado, Khalid Saab, हम आपसे सुना. Khalid ji, is there anyone else? Photo session is not? Sure. Okay, your wife, please आ जाएं. इनको एंट्री नहीं मिलेगी. सॉरी फ्रेंड्स ऑफ द मीडिया, इनको एंट्री नहीं मिलेगी वरना मनीष जी को घर पे. थैंक यू. अरे बैठो भाई, क्या कर रहे हो यार आप? सर सॉरी अभी किसी का चांस नहीं आएगा, सो आप प्लीज बैठ जाएं. आप यहाँ से बाहर जा रहे हैं.
कल जी लेकिन मैं भी एक फोटो लेना चाहूंगी, सब ले रहे हैं. I also don't want to miss out. Thank you, ma'am. Thank you. Just 1 second. Thank you so much. Please take your seats. Sorry, apologies, please. सिमरन कल जी आप यहाँ पे आए. कल जी हम आपसे सुनना चाहेंगे. You have the microphone there. Please. कम से कम ये तो देखो कैमरा है पीछे यार. तो माल ये लोग देंगे. प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब आ गए और है. यही सपना देखते हैं, है ना? या तो क्वीन बने या acting or be a part of the beautiful world of films, ladies and gentlemen. And what a huge honor that we have once again international beauty to be a part of Cyberman, produced by Khalid Kidwai and Manish. Our reigning Miss Global here in India, ladies and gentlemen. She's from Puerto Rico and she won the title this year on Jan 18 at Philippines, where she was announced our reigning Miss Global. Gives us a huge honor to have your brilliant presence along with your smiles. And let me tell you, before you arrived here, we had great praises for you. So I'm going to definitely mention that. But for now, ladies and gentlemen, may we please put hands together and request Zakir Hussain Sahab to join us in the center and also accept this token of love, this lovely bouquet. Please. You can join us as well. We have bouquet for everyone, yeah. Okay, so we welcome our queen too. Let's give it up, ladies and gentlemen, as it gives us a huge honor to welcome our very own Miss Global India. May we all put hands together for the fabulous and our queen, our very own Indian queen, Miss Global, Miss Mansi. Heartfelt congratulations to also our queen, Miss Mansi Chaurasia, for winning the title of Miss India Global. So please, Ajay, Rakesh ji, Manish ji, you don't have to miss out on this beautiful moment. So we have two beauty queens. Ooh la la la. This is unbelievable. Mansi, we are proud of you, the pride of our nation. That's a huge honor. Mansi is a part of the film or no? वो तो खालिद साहब ही बताएंगे हमें. मैं नहीं इस रास को फास्ट कर सकती हूँ. But for now, आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार. We welcome our beautiful queens here. A very beautiful bouquet to the supremely gorgeous, the Golden Girl. Let's please give it up for the Cyberman grand announcement. For the
handsome man, Rakil sir. Anup ji, look one. Thank you. बहुत शुक्रिया, बहुत आज अनाउंसमेंट हुआ है तो क्या आशीर्वाद देंगे खालिद सर को, पूरी टीम को क्या कहना चाहेंगे? Wow. Let me take a few minutes to just stare at you. Wow. MashaAllah. Absolute. The personification of beauty on stage. And Khalid sir, we're very excited. Yeah, we are waiting. Please, hame sare dates bhi aaj bata dena. So I'm going to ask and go ahead towards Ashley, where I'm going to ask Ashley, how does it feel? गोल्डन गर्ल को देख के लग रहा है कि साइबर मैन बहुत लंबा होगा। मुझे बहुत खुशी है कि एक ऐसे सब्जेक्ट को टच किया गया है जिससे बहुत लोग पीड़ित हैं, इतने ज़्यादा पीड़ित हैं कि कभी कभी तो पूरे दुनिया से फ्लाइट्स को नीचे उतरवा लिया जाता है। नीचे आ जाओ, किसी ने परेशान कर दिया कंप्यूटर्स को, कितना तक होता है, मतलब कहाँ तक उनकी पहुँच है। मैंने तो सुना है एक बार व्हाइट हाउस में भी अटैक हो, तो कहाँ तक उसकी पहुँच है और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो फिल्म है ये आप लोगों को ये बताएगी कि आपको किस तरह केयरफुल रहना है। किसी के बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो सकते हैं, किसी का मेल हैक किया जा सकता है, जब व्हाइट हाउस में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, बड़ी बड़ी एयरलाइंस को अपने प्लेन नीचे उतारने पड़ सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये एक ऐसी प्रोग्रेस लाइन है जिसमें ये प्रॉब्लम्स हुई हैं। प्रोग्रेस लाइन ये बहुत बड़ी है, न जाने कितने इससे फ़ायदे हो रहे हैं, लेकिन जो नुकसान हो सकते हैं और होते हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हर एक को साइबर मैन देखनी चाहिए, हर एक को देखनी चाहिए। मैं अपनी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इसकी पूरी टीम को। ईश्वर से ये प्रार्थना है कि बहुत लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचे, सारी दुनिया इसको देखे। और इसमें जो हीरोइन है वो अमेरिका की जो क्वीन है, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ। आपका खूब नाम हो, मैं यूँ नहीं देख रहा है, आप समझ सकते हो, मुझे ऐसे देखना पड़ता है, तो लेकिन अपनी तरफ से बहुत मुबारकबाद देता हूँ। खूब काम करिए और हमारे फिल्म इंडस्ट्री को, बॉलीवुड को और खूबसूरत बनाइए। साइबरमैन का सपना कभी तो आपने नहीं सोचा था ये शायद इस सब्जेक्ट पे काम करेंगे। या साइबरमैन मनीष जी जो है वो हमारे इस स्टेट से आते हैं, उत्तर प्रदेश से, और अननोन तरीके से ये पिछले 7-8 सालों से काम कर रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें कहीं मुलाकात हुई और उनके बारे में पता लगा। बहुत शाही नहीं है मनीष जी, उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया, लेकिन अचानक किसी सिलसिले में बातचीत हुई और तब पता लगा कि असली साइबरमैन का टाइटल इनको ही मिला हुआ है। हम पास रहते हुए मैं नहीं मालूम कि साइबरमैन असली साइबरमैन यही है। तो थॉट वहाँ से आया। आज की डेट में हम ये सब जानते हैं या सुनते हैं कि हिंदुस्तान का हर चौथा आदमी आज साइबर फ्रॉड से जो है मतलब फेस कर रहा है, और अलग अलग तरीक़ों से जो है वो फ्रॉड होते हैं और लोग परेशान हैं। लेकिन उस सबके लिए उन्होंने कितना स्ट्रगल किया मनीष जी ने, वो एक इनकी अपने आप में एक थ्रिल स्टोरी सुन सकते हैं कि वो थ्रिलर टाइप की वो लाइफ में उनकी ज़िंदगी गुजरी। तो हमें आइडिया है कि ये काम क्योंकि पब्लिक में आना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। बिना अवेयरनेस के
साइबर क्राइम को रोका नहीं जा सकता, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बहुत लोग जैसे ऑफिसर्स और हम लोग आम आदमी भी इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इसको रोका जाए और अवेयरनेस की जाए जिससे कि लोग समझ सकें। तो दिन 1 बाय 1 मिलते जाते हैं लोग, कारोबार बनता जाता है। तो मनीष जी के साथ में हाथ ज्वाइन किया और दिन फिर इसके ऊपर स्क्रिप्टिंग के साथ काम शुरू किया। और राकेश जी क्योंकि हमारे बहुत पुराने और हमारे सीनियर भी थे, तो उन्हीं को हाथ में कमान दी गई। ये सरप्राइज था मेरे लिए भी, एक्चुअली बस कमिंग इन दुबई। तो लास्ट मंथ में दुबई में था, किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में गया हुआ था और सडनली 22 को ही बर्थडे होती है, तो उस बर्थडे में हमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और साथ में शेयर किया, बहुत फीलिंग्स शेयर की, उनकी भी एक्सपीरियंस शेयर किया। देन वहीं से माइंड में आया कि क्यों ना अब तक हिंदुस्तान में बॉलीवुड में बहुत ही ब्यूटीज़ को जो है दिलों में बैठाया है, पब्लिक ने उठाया है, सबको उठाया है और लोगों को शेयर किया जाए इसको भी, और इसमें टैलेंट है। और ये तो यहाँ पर आने के बाद ये डिसाइड कर लेते नहीं है उनको वन ऑफ द लीड कैरेक्टर के लिए, और ये पार्ट हो जाए। एक मिशन है हम लोगों का, ये साइबर फ्रॉड के अगेंस्ट में एक मिल करके और एक मिशन हमारे तैयार किया है कि हम लोग इसमें जाएंगे और काम करेंगे। एक पार्ट हुई और हमारे साथ जुड़े आज यहाँ पर और हमारे खास सीनियर और हमारे बहुत अजीज जाकिर भाई जो ज़माने से है हमारे मतलब साथ हैं, हमारी बहुत मदद की है उन्होंने इस इंडस्ट्री में खड़े रहने के लिए। लास्ट फिल्म में भी जाकिर भाई वन ऑफ द लीड कैरेक्टर थे, उन्होंने अच्छे से निभाया था और बहुत साथ दिया। एक और हमारे रीजन जिनको नहीं बोल सकते ओमपुरी जी सीनियर और हमारे यहाँ से गॉडफादर टाइप के, जिन्होंने हमें बहुत प्रोत्साहन दिया इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए। भाई कितना काम किया उन्होंने, बहुत एडजस्टमेंट होती है कि जब वो फिल्म रिलीज होने के वक्त आया तो अचानक फिल्म डेथ हो गई, जो कि लास्ट फिल्म से प्रकाश दलाल के नाम से फिल्म रिलीज हुई 2020 में के बीच में। तो नाउ अब फिर से हिम्मत कर रहे हैं, जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं तो अब कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, चाहे दोनों काम हो, सोशल वर्क भी हो, पब्लिक को अवेयरनेस भी हो और एंटरटेनमेंट भी हो। बाकी आगे जो है वो राकेश जी और मनीष जी बताएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हुए हैं, नेगेटिव हुए हैं, तो हमें ये नज़र में रखते हुए इस फिल्म को हम आगे बढ़ रहे हैं कि जो पॉजिटिव हैं वो बेनिफिट देखे जाएँ और नेगेटिव से हम होशियार हैं, स्पेशली छोटे बच्चों के साथ। छोटे के बच्चे 2-2 साल के 3-3 साल के बच्चे हैं, उनके पास हाथ में मोबाइल नहीं होता है तो रोने लगते हैं, हैबिट पड़ गई है और कैसी दीवानी की तरफ करना हो गया है। जो हम लोग बचपन में इतनी दीवानी में जमाना हो गया वो भी है सर माई एक्सपीरियंस कि हम लोग फिजिकल फिटनेस में ज़्यादा बिलीव करते थे स्पोर्ट्स में। आज की डेट में क्या हो गया है कि सिर्फ माइंड चलता है, वही ग्रो करता है, फिजिकली नहीं कर पा रहे, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। इसके लिए हमें उसको नज़र में रखते हुए इस फिल्म को आगे बढ़ाया गया है और डेफिनेटली आप लोग उसको लाइक करेंगे। और हर घर में ये पर्टिकुलर किसी में नहीं उस एरिया का आदमी है, ये है या कोई लड़की है या कोई लड़का है या बड़ा बूढ़ा कोई, एवरीबडी हर घर में वो प्रॉब्लम है। तो उस घर की प्रॉब्लम हम खुद सॉल्व कर सकते हैं, ना कि कोई दूसरा कोई पुलिस वाला या कोई जाएगा सॉल्व करने, कोई नहीं, आपको खुद सॉल्व करना है। क्योंकि टीचिंग स्टार्ट होती है बच्चे की माँ बाप से, देन कॉलेज के टीचर्स आते हैं, फिर खुद का एक्सपीरियंस आता है। कल का जो हमारी अगली पीढ़ी है ना वो हमसे ज़्यादा एडवांस है। छोटे छोटे बच्चे भी है ना,
मतलब ऐसे लॉक लगा देते हैं कि अब माँ बाप नहीं खोल पाते। पहले माँ बाप लगा देते हैं, बच्चे लगा देते हैं। वो ऐसे ऐसी ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं कि माँ बाप को नहीं पता लगती। इनफैक्ट अगर थोड़ी देर के लिए उनके पास मोबाइल भी जाता है तो वो डाउनलोड करते हैं कोई भी गेम और उसके बाद इंस्टॉल नहीं करते, पता ही नहीं है ना। लेकिन ये पता नहीं कि आपके मोबाइल के साथ क्या होगा। कहने का मतलब कुछ आजकल के कुछ यूथ के लिए भी एक मैसेज बोलना चाहूँगा कि जब हम लोग ज़्यादा काम करते करते थक जाते हैं तो अपने टैलेंट का मिसयूज करने लगते हैं। तो मेरा उनके लिए बस एक छोटा सा मैं उनको कहना चाहूँगा कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि किस दिशा में कर रहे हैं। यानी कि दिन रात काम तो दीमक भी करती है पर वो विकास का नहीं विनाश है। तो सर जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं जैसा जिसको आपने शुभारंभ किया है तो इसमें इस चीज़ पर फोकस किया गया है? सर हर चीज़ पर फोकस, 4 साल के बच्चे से लेकर 70 साल तक, मतलब सबको ध्यान में रखते हुए 70 साल में मतलब एक इंडिकेट नहीं करना चाहूँगा, मैं तो 100 ईयर्स के इंसान तक के लिए है, क्योंकि जो जिस एज में है वो उस तरीके के ट्रैप में फंस गए। जो हमारी 70 साल वाली पीढ़ी है उनको बस कीबोर्ड वाला मोबाइल आता है ना, लेकिन वो भी ट्रैप में फंस गए। एक 4 साल का बच्चा, लोगों ने देखा था ब्लू व्हेल गेम, वो छत पे आके कूद रहा है। तो उसके लिए भी हम लोग ध्यान में रखेंगे और उसको भी मतलब कोशिश करेंगे कि वो मतलब जो आगे बढ़ रहा है ना वो उसको भी पता हो कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ और क्या सही कर रहा हूँ, इसके बाद मुझे क्या करना है। मेरी तरफ से आपको मुबारकबाद। Because there are 2 different type of areas and careers, but definitely I am a person that feels that the destiny has the way of teaching you where you're gonna go. So yes, of course, it might be able to help a little because being Miss Global, I'm able to be more seen and maybe notice. But again, I think everything I have to be honored and grateful because of the destiny, because it's the one that brought me here. You choose India, the country. What are the things you like about India? I would say the people. Definitely, after being here, the food, and obviously very beautiful landmarks that has been traveling around the world, and even me that comes from a small island, I was able to know about India's story and culture, and that was something that for me, it took me 11 years to get here, but again, the destiny brought me here. I think it was supposed to happen, so that's why we're here today. खालिद जी, आपने कहा कि आप इनको दुबई में मिले और ये शायद आपको एक ही नज़र में भा गई। आपके किरदार के लिए ऑब्वियसली तो फर्क है। तो शी वाज योर फर्स्ट चॉइस। मैं कोई प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन या किसी एम के तहत मैं नहीं गया था, क्योंकि टाइटल मिस ग्लोबल में आप एक और अच्छा जहाँ हमारी मुलाकात हुई किसी फंक्शन में और सडनली पता लगा कि आज बर्थडे है। उसी दिन वो आई थी मॉर्निंग में, तो मेरे पास तो सब कोई तैयारी नहीं थी। सब लोग गिफ्ट दे रहे हैं, केक कटिंग के बाद गिफ्ट देने लगे। मुझसे भी पूछा गया NGO के कुछ मिस ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जिसके तहत ये काम कर रही है, उसके फाउंडर मेंबर हैं शुभान। ऐसे ही हंसते हंसते उन्होंने बोला कि आपके पास कौन सा गिफ्ट है देने के लिए लाए हैं आप? समझ लगा मेरे पास इस वक्त अनविजिबल गिफ्ट है जो मैं दे सकता हूँ अगर इनकेस लग सकता है। तो मेरे आइडिया आया कि अगर बॉलीवुड में ये करना चाहिए, और फर्स्ट उसने जब देखा माई फेस तो हमें ये US का ना लेकर के इंडियन ज़्यादा लगी। माई फेस इंडियन लगी, ये कैरेक्टर में सूट करती हैं और जिस तरह से इसकी एक्टिवनेस और उनका नेचर सबसे अच्छा, जिसकी वजह से हमारे को बोला कि आना चाहिए एक्सेप्ट किया। Well, everything started the day of my birthday. Actually, I would say this was my birthday gift.
Bollywood, I've been able to see in the past a few of the movies, and I love how you mix your culture, your music in it. And I said I'm always like acting career, so this was a special, very important moment for me because I was able to do both. So it started on my birthday. Right now we are currently working on a character that is more or less a police. That's something that I always like to be played. And yes, I love romantic movies. I love action movies. So basically, I love those areas to work on. Thank you so much. Really, I'm very excited. And first of all, I want to thank to Well-Great Studio, Khalid Bhai, Manish ji, and Zakir Bhai. Thank you for coming. And Khalid Bhai, especially आपका thanks कि आपने मेरे ऊपर विश्वास किया, ये मौका मुझे दिया. और जहाँ तक स्पेनिश ब्यूटी की बात है, शी इज़ रियली वेरी प्रीटी. कल हमने फोटो शूट किया, तब मेरी पहली मुलाकात हुई. एंड शी इज़ रियली वेरी गुड एक्ट्रेस, रियली वेरी गुड एक्ट्रेस. थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, बट डेफिनेटली बहुत जल्दी और बहुत फास्ट वो पिकअप कर रही हैं. एंड आई थिंक शायद हमको डब ना करना पड़े उसके साथ. This is a big announcement. Wow, इतनी fabulous है. और imagine सिर्फ photo session में, and this is the beauty of course of our director, that वो नजरें पहचान लेती हैं to the talent. So he says of course she's also a fabulous actress. Khalid साहब, already permission granted. मतलब already fabulous actress भी हो गई. Wow, what a beautiful feeling, sir. And thank you, sir, for this grand photo session. And we truly look forward to, of course, the grand unveiling और शुभ मुहूर्त जब होगा तब बहुत सारी राज फाश होंगे. Till then, of course, हमारा साथ तो बना रहेगा. So I'm going to come and speak to Manish Goyal ji. Manish ji, this was your idea. ये अभी फिल्म के बारे में काफी कुछ आपको पता लग गया है, और जैसा कि टाइटल है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है. बट मैं अपनी फीलिंग अगर आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो मुझे जिस वक्त उन्होंने एक आइडिया बताया खालिद भाई ने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसके अंदर एक सोशल मैसेज है. और जब भी किसी के साथ में साइबर क्राइम का कोई भी शिकार होता है, तो वाकई वो बहुत हेल्पलेस होता है. उसको नहीं पता होता है कि अब मैं क्या करूं और कहाँ ढूंढूं अपना पैसा. तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, और बहुत सारी चीज़ें हम फिल्म के जरिए बताना चाहते हैं आम पब्लिक को, कि उनका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, सेकंड क्या होना चाहिए, थर्ड क्या होना चाहिए. और डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ में ये चीज़ें हो रही हैं, और वन बाय वन हम ऑडियंस को कैसे वो चीज़ें बताते हैं. हालांकि खालिद भाई और हम लोग पिछले 2 साल से 3 साल से कोशिश कर रहे थे कि कुछ सब्जेक्ट्स उनके थे, कुछ मेरे पास थे, बट हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कहाँ से हमको शुरू करना है. और वो चीज़ मनीष जी ने सॉल्व कर दी. जब उन्होंने वो कॉन्सेप्ट बताया तो मुझे लगा कि यार ये माइंड ब्लोइंग है, इसके ऊपर हमको वो ऐड करना चाहिए. एंड आई थिंक आज जो हम लोग सब मिले हैं वो सिर्फ अनाउंसमेंट के लिए मिले हैं. और इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि स्टोरी के बारे में कुछ भी बोलना इट विल बी टू अर्ली. सो थैंक्स फॉर कमिंग. एंड बस आप लोगों की सबकी हमको ब्लेसिंग्स चाहिए कि एक अच्छी फिल्म हम लोग बना सकें, और जो मैसेज हम देना चाहते हैं वो क्लियर कट हम कन्वे कर पाएँ. थैंक यू सो मच. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये मिशन है, और एक कॉमन मैन जो हमेशा यही सोचता है कि मैं क्या करूँ. सबसे पहले पैसा निकलता है, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, रोऊँ भी या नहीं रोऊँ. क्योंकि रोने में भी उसे ये लगता है कि मेरे अपने मजाक बनाएंगे. यार ये तो हमारी फैमिली में सबसे बड़ा था, हम इसी से एडवाइस लेते थे, और इसी का पैसा निकल गया, ये यही स्कैम में फंस गया, तो क्या होगा. तो इसलिए वो ज़्यादातर लोग आजकल शेयर नहीं करते. इसको मैं 2 लाइनों में ऐसे बताना चाहूँगा कि आजकल का जो यूथ है वो सबसे ज़्यादा लाइक और शेयर के पीछे भागता है. लेकिन लाइक और शेयर की दूसरी डेफिनेशन भी है. लाइक को लोग समझते हैं ठेंगा,
जिससे पहले लोग चिढ़ते थे आज उससे खुश होते हैं कि कैमरा दिखाया, मतलब वो हमें लाइक कर रहा है। और शेयर का मतलब होता है आगे फॉरवर्ड करना, एक मतलब और भी है। लाइक का मतलब होता है जो अच्छा होता है हम उसे लाइक करते हैं, और जो हमें यहाँ अच्छा लगता है उसे हम शेयर करते हैं। दैट्स मीन कि यदि आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो प्लीज उसे शेयर जरूर करिए। आपके पास बैठे होते हैं, दूर नहीं बैठे होते हैं, और हम उन्हीं से छुपाते हैं। और एक कॉमन मैन की सोच की जो लोग सोचते हैं कि हमारे साथ अगर स्कैम हो रहा है तो पुलिस, मीडिया या राजनीतिक लोग हमारी वही मदद कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देश हित के लिए किसी वर्दी की जरूरत नहीं है। आप जिस लिबास में जहां खड़े होते हैं देश हित के लिए कार्य कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे छोटे हम लोग देखते हैं कि पैसा चोरी होता है उनका, कभी हम बैठ जाते हैं आगे नहीं बढ़ते हैं, फिर खून पसीने की कमाई हमारा कोई भी ले लेता है। तो इट्स ए बिग मिशन। अभी तक जो मेरा मिशन था वो 140 करोड़ लोगों के लिए था, भारत के लोगों के लिए, लेकिन थैंक्स टू खालिद सर एंड अवर टीम कि अब ये मिशन ग्लोबल मिशन हो गया है जो 600 करोड़ लोगों के लिए हो गया है। क्योंकि इसमें एक छोटे बच्चे से लेकर यानी कि 4 साल के बच्चे से लेकर और 70 साल तक का इंसान प्रभावित हो रहा है, उसका पैसा निकल रहा है, उसको पता भी नहीं लगता है कि हम जाए कहाँ पे। तो बस उसी के साथ एक एक्सपीरियंस शेयर किया जा रहा है जिससे लोगों की जहाँ तक हेल्प कर सकते हैं वहाँ हेल्प करें, और जो लोग कुछ गलत रास्ते पे हमारे परिवार के लोग निकल गए उनको सही रास्ते। मनीष जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि वो कब, वो कौन सा इंसिडेंट था जब बाकी तमाम लोगों का, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ इसमें, क्योंकि मुझे अभी तक कुछ नहीं मालूम। परसों इनका फोन आया तो कहने लगे कि एक ऐसे ऐसे अनाउंसमेंट होगा तो आपको आना है। मैं आ जाता हूँ। मुझे लगा मैं शायद दोस्त हैं इसलिए बुला रहे हैं, तो कहने लगे फोटो भेज दीजिए। मैं कहा है फोटो क्यों भेज दूँ, कहते आपकी तस्वीर लगानी है। तो मैंने कहा आप मुझे ले रहे हैं क्या फिल्म में? तो कहते और क्या, तो ये बोलो ना कि आपको फिल्म में कास्ट कर रहे हैं। तो एक एक करके कभी कुछ, तो मुझे जरा भी नहीं मालूम स्क्रिप्ट के बारे में, और मैं तो ऐसे ही घर पे बैठा हुआ था, ऐसे उठ के आ गया। देख के ब्यूटीफुल गर्ल्स हमारे बीच में, उनके सामने मैं कैसा लग रहा होगा, मैं सोच ऐसा। तो खैर कोई बात नहीं। ऑल द बेस्ट फॉर दिस ब्यूटीफुल अनाउंसमेंट। हमारे प्रोड्यूसर साहब, को प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साहब, उनसे डायरेक्ट हमारा रिश्ता नहीं है, लेकिन हाँ प्रोड्यूसर साहब जो है ये भी यूपी के हैं, मैं भी यूपी का हूँ, को प्रोड्यूसर भी यूपी के हैं, साइबर मैन भी यूपी के हैं। और अनिल साहब से, अनिल नहीं, राकेश जी से जो रिश्ता है वो अनीस बज़मी साहब की वजह से कॉमन है। मिला मैं आज हूँ उनसे पहली बार, लेकिन हाँ एक दूसरे का काम देखते रहते हैं, करते रहते हैं। जब मिलते हैं तो एक दूसरे के काम की तारीफ करते हैं। बाकी यही है कि अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद मुझे पता लगेगा मैं क्या गुण खिलाने वाला हूँ इसमें, मुझे मालूम नहीं है, मुझे माफ करिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। ऐसे कमाइएगा? नहीं, टाइटल है और साइबरमैन डेफिनेटली, और एक फील है थ्रिल की, बट हम इसके अंदर शायद ये भी एक सरप्राइज ही होगा। थ्रिल अपनी जगह पे है और एंटरटेनमेंट अपनी जगह पे है। तो बहुत सारे छोटे छोटे से कैरेक्टर्स हैं जो बहुत रिलीफ देते हैं। एंड अभी तक मनीष भाई को और खालिद भाई जो कि यहाँ पे नहीं थे काफी टाइम से बीच में, कल हमने फर्स्ट हाफ का नरेशन किया एंड दे वर वेरी हैप्पी एंड वी वर ऑल वेर लाफिंग लाइक नथिंग। तो कहानी अपनी जगह पे चल रही है, थ्रिल अपनी जगह पे चल रहा है, मैसेज अपनी जगह पे चल रहा है, बट एंटरटेनमेंट इज देयर। राकेश जी, मेरा सवाल आपसे है कि फिल्मों में टिपिकल टाइप के विलन्स होते थे, लुक होता था, फिजिक्स होती थी, बॉडीज होती थी। आज इंटरनेट का जमाना है, क्राइम का तरीका बदल चुका है। आपकी फिल्म की हीरोइन तो बहुत खूबसूरत है, विलन कैसा होगा सर? विलन सर, जैसा कि मनीष भाई ने बोला अभी कि जो यंगस्टर्स हैं वो टेक्निकली हमसे बहुत ज्यादा अपग्रेड हैं।
एंड अभी इट विल बी टू अर्ली टू रिवील कि विलन कैसा होगा, बट मैं आपको इतना बताऊं कि जो मतलब इमेजिनेशन के बियॉन्ड जाके वो जो चीजें कर रहा था, हम सोच नहीं सकते हैं कि डेली की उसकी इनकम कितनी और कितना बड़ा उसका नेटवर्क था जिसको इन्होंने पकड़ा। और सरप्राइज मेरे लिए भी था जब मैंने इनसे सुना ये कि ही वॉज जस्ट 22, उसको 7 months के लिए फिर लास्ट में किस तरह से सजा मिल गई एंड ही वॉज हैंडीकैप्ड विथ 1 leg, बट बाय माइंड जैसे हम बोलते हैं ना कि डिफरेंटली एबल्ड, तो कुछ ज्यादा ही डिफरेंटली एबल्ड है वो। दैट्स इट। खालिद साहब, एक सवाल आपसे भी बन रहा है। जैसे कि जाकिर साहब ने बताया कि उनको नहीं पता था कि इस तरह का पिक्चर उनका आने वाला है। आज AI का जमाना है। Earlier, I don't know Khalid sir, Manish sir, and everyone. I was not aware about the movie. It was a surprise for me, and so yeah, I'm here with Ashley, and they asked me about the movie as well. So now I'm thinking for it. I will not say any words here, but let's see and hope for the best. Ooh la la la. So, Raj Meher, how does it feel being here with us? Okay. Hello. First of all, namaste, India. Namaste. So adorable. It's been an honor for me to visit India. I'm going to tell you a little story. When I was little, I had a project actually where they told me to choose a country that I wanted to represent. I chose India. Wow. So I fell in love with the Indian story and the culture a long time ago. So for me, it was a dream come true to be here and to be able to visit something that I already knew, but I only knew it in books. So being able to be there and showcase it, it was completely amazing and definitely something that I will never forget. Oh, this is incredible. So dreams right here, right now, Zakir Hussain साहब. Thank you sir. Sir, आपकी मुस्कुराहट मुझे देखने मिलेगी जब भी आप जाओ. मतलब आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में I'm really very eager to see. Please. कुछ चीजें सीक्रेट रहे तो ज्यादा अच्छा है. Okay sir, thank you. मैंने भी कह रहे पुलिस की ड्रेस में कोई वो है क्या पिक्चर, मैं कही नहीं है. फिर मुझे याद आया शायद एक आध हो तो वो IPS की ड्रेस में थी, तो कह लगी तो चलेगी नहीं. तो मैंने कहा मत छापो मेरा फोटो. तो कहने लगे कि नहीं ऐसा, तो अभी उन्होंने कुछ जोड़ तोड़ करके कुछ बनाया है. मुझे डर ये है कि फिल्में भी ऐसे ना कर ले, मुझे बिना बुलाए कैरेक्टर करवा ले, किसी और से चेहरा मेरा लगा दे, तो गड़बड़ हो जाएगी. क्या हाँ नहीं, मैं देखते हैं. तो एक्चुअली मैं तो इनसे बात कर रहा था किसी और प्रोजेक्ट के बारे में, इन्होंने ये घुमा दिया हाथ में. तो चलो भाई, ये तो रास्ते की बात है अपनी, जैसा जैसा, क्योंकि एक फिल्म हम साथ में कर चुके हैं. ओम प्रकाश जिंदाबाद. ओम जी को याद करते हुए उनको नमन करता हूँ मैं. हमारे सीनियर, बहुत सीनियर थे, नसीब भाई और ओम जी एक ही बैच के लिए NSD पे. तो देखिए मजा आएगा. कुछ काफी अच्छा सा महसूस हो रहा है. राकेश जी आपसे. Is that true? Really? What? Okay, for me, it took me like, I'd say 1 day to be able to like understand and process that Ashley is not only visiting India, but will be starting in a Bollywood movie. It was like making 2 dreams in one. So definitely it took me some time to process it and understand, wow, I feel very blessed because this year has been an actually experience for me. And I think that that's something very important because in life, there's full of changes, but you have to be willing to take risks to be able to build your future. So
I am very happy and very honored for the opportunity. Thank you so much, Khalid, for seeing that potential in me, and I promise you all that I'll do my best. Thank you so much.